student, welcome. Let's continue our math second chapter, that is parallel line. And student, today we see one important theorem, that is sum of angles of a triangle is 180 degree. You know this theorem, in any type of triangle, the sum of the angles of a triangle is 180 degree. Suppose in triangle, suppose this is one triangle, if P, Q, R, then sum of these three angles, means sum of angle P, angle Q and angle R equal to 180 degree. So angle P plus angle Q plus angle R equal to 180 degree. ये पहले भी आप पढ़ चुके होंगे. So today we prove this means the sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. How can you prove this theorem? So first we draw diagram. Then according to statement or diagram, write given. Then to prove, and then if construction is there, then we write construction and prove. So here suppose triangle ABC is given. Triangle ABC means any triangle. Means here type is not given, means it is right angle triangle or acute or obtuse. किसी भी टाइप का ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो. तो इससे हमें क्या लिखना है? गिवन. Means triangle ABC is any triangle. Triangle ABC is any triangle. Then to prove, so here write angles in three letters. Means for angle B, three letters we write like this: angle ABC, angle ACB and BAC equal to 180 degrees. So to prove is angle ABC means this angle plus angle ACB this, and third one is BAC plus angle BAC equal to 180 degree. Then we write construction. कुछ थ्योरम में हमें डायग्राम में अलग से कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है और उसके आधार पे हमको उसका प्रूफ मिलता है. तो इस डायग्राम में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, देखिए. तो फ्रॉम ए लाइन पैरेलल टू साइड BC पासिंग थ्रू पॉइंट A, जो पॉइंट A से पास हो रहा है, और BC को क्या है? मींस P and Q. Means here A is between point P and Q. So we write here, draw a line parallel to segment BC and passing through point A such that PAQ means point A is between point P and Q, and then we write our main part, that is proof. So student, here you see these two lines, means PQ and BC, both are parallel, and if you take this AB as a transversal, that can see this both, means this angle PAB and BAC both are alternate angles. You know alternate angles are congruent. So here we write line PQ parallel to, here we write segment or line BC, no problem. If you write here line BC means this line PQ parallel to line BC and segment AB
इज ट्रांसवर्सल। आपको दो टाइप के स्टेटमेंट, यहाँ पे लाइन के बदले आप सेगमेंट भी लिख सकते हो। तो लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। तो आपको ऐसे जेड में जो मैंने स्टार किए ये दो अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं, इसे 3 लेटर्स में लिखना है। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी, पहले मैं ट्रायंगल का लिखता हूँ, ए बी सी इक्वल टू एंगल पी ए बी और ये ऐसे जेड टाइप की डायग्राम बनी। और इसमें मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ और रीजन लिखूंगा अल्टरनेट एंगल्स, ये रीजन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन बी सी एंड ट्रांसवर्सल। अब जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्रांसवर्सल ए बी कंसीडर किया है, अब ट्रांसवर्सल ए सी लेना है, तो आपको फिर यहाँ पे ये और ये एंगल क्या दिखेंगे, अल्टरनेट एंगल दिखेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गई, लाइन पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट बी सी और लाइन बी सी और साइड बी सी एंड सेगमेंट ए बी इज ट्रांसवर्सल, देन alternate angle, that is angle ABC equal to angle PAB. And similarly, if line PQ parallel to line BC and segment AC is transversal. अब मैंने AC को ट्रांसवर्सल लिया, तो फिर से जो अल्टरनेट एंगल बने हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसका 3 लेटर्स में नाम लिखना है। तो एंगल ACB equal to angle QAC, second number, and same region, that is alternate angles. Then see in two group, here angle ABC and angle ACB in additional form, इन सबका क्या है, सम है, इसलिए यहाँ पे हम भी क्या कर लेंगे, एडिंग 1 and 2, ये फर्स्ट और सेकंड जो इसको ऐड करेंगे। तो एडिंग 1 and 2, अब 1 और 2 को ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेपरेट सेपरेट ऐड करना है। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये सेकंड है, तो इसे ऐड करना है ए बी सी प्लस एंगल सेकंड इक्वेशन का ए सी बी इक्वल टू राइट साइड का है पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी। ये ऐड करने के बाद की जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये तो सिंपल था कि दो लाइन को क्या करना है, हमें पैरेलल दिखा के एक बार ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करके अल्टरनेट एंगल लिखना है, दूसरी बार एसी को ट्रांसवर्सल कंसीडर करके सेकंड नंबर लिखना है, फिर 1 और 2 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद की जो स्टेप्स है वो इम्पोर्टेंट है। अब उसे याद रखने की सबसे सिंपल मेथड है कि ये दो जो एंगल है वो ट्रायंगल के हो चुके, कौन से हो चुके हैं, ए बी सी एंड ए सी बी हो गए। एक एंगल बचा है इसमें, कौन सा बचा है, तो वो बचा है बी ए सी, बी ए सी। सो वी ऐड एंगल बी ए सी ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी एंगल बी ए सी को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं, एडिंग एंगल BAC टू बोथ साइड, इसे थर्ड नंबर दे देता हूं, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 के दोनों तरफ, इधर भी ऐड करना है आपको, इधर भी ऐड करना है। अब ऐड करते समय क्या होगा, देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ये दो जो पहले से वो लिख लिए, प्लस एंगल BAC मैंने इधर क्या किया, ऐड कर दिया इसमें, इस तरफ। अब इधर भी ऐड करना है एंगल PAB प्लस एंगल QAC प्लस एंगल BAC। तो दोनों तरफ ऐड करने के बाद क्या हुआ, अब
ये तीनों एंगल हमें यहाँ पे मिल गए और ये तीनों एंगल का सम देखना है। अब अगर ध्यान देंगे आपको ये लीनियर पेयर है, तीनों ही एंगल एक ही लाइन पर है। कैसे है चेक करते हैं, देखते हैं। एंगल पी ए बी ये यहाँ, क्यू ए सी यहाँ हो गया और बी ए सी यहाँ हो गया। तो इन सबका सम हो जाएगा कितना 180। वही हमें क्या करना है प्रूव करना है। लेकिन लीनियर पेयर में हम क्या करते हैं दो ही एंगल दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अगर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 180 तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का सम मीन्स एंगल क्यू ए सी एंड ए सी बी इनको एक साथ करके क्यू ए बी कर लेंगे तो हमें लीनियर पेयर और आसानी से दिखा जाएगा। तो इससे आगे की स्टेटमेंट क्या हो, तो यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू, अब ये जो है यहाँ पे मैं लास्ट के दो एंगल को एक साथ करने वाला। तो ये एंगल पहला करने देता हूँ बी ए बी प्लस इन दोनों के हो ये जो दोनों है क्यू ए सी और ए सी बी या फिर लास्ट का जो है बी ए सी ये जो दो एंगल है इनको एक साथ करना। तो इसके बदले क्या आ जाएगा अगर इन दोनों का सम देखते हैं हम लोग तो एंगल या फिर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एंगल क्यू ए सी प्लस एंगल बी ए सी। सिर्फ ये स्टेप्स क्या किया है ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपको ध्यान में रहे कि इन दोनों के बदले एक लार्जर एंगल हमें कौन सा लिखना है बी ए क्यू लिखना है। तो अब ये स्टेटमेंट है वो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू ये ऐसे का ऐसे रहेगा पी ए बी प्लस अब ये जो था ये अब यहाँ पे थोड़ी जगह का प्रॉब्लम है। ये आप एक ही लाइन में लिखो ये एंगल इधर फिर पीछे इक्वल और इधर तो ये हो गया हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इनके सम के बदले आ जाता है बी ए क्यू या क्यू ए सी। तो हम लोग यहाँ पे बी ए क्यू लिख लेते हैं और इन दोनों का सम ये दोनों जो दिख रहे हैं इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और ये ऊपर हमारे 3 एंगल्स जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था 180 मींस जो प्रूव करना था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर्स। तो इस तरह से ये 4 मार्क्स का जो थ्योरम है आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। बहुत सिंपल थ्योरम है, कोई बहुत हार्ड नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस थ्योरम 1 2 और 3 टाइम्स, then we solve it।